So hello everyone, how are you? Let us start today the journal entries. This is basically financial accounting journal entries, right? We have nominal, real and personal accounts we have discussed earlier in the previous videos. I think they are initial videos, so just go through them. The heading is real account, rules regarding real account for journal entries, rules regarding nominal account for journal entries, and rules regarding personal account journal entries, right? So there are three separate videos for all these three, and today we will be discussing about how to make journal entries in the financial accounting subject. Okay, so let us move on further. Now see, if you can see over here, general entry questions and answers. Basically क्या होता है, हमें रूल्स तो पता होते हैं, रूल सबको पता होते हैं। जैसे कि आपको पता है पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पहली बात। सेकेंड पॉइंट है, हर रूल में आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। सेकेंड, हमारा रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Debit what comes into the business and credit what goes out of the business. Again, think from the business point of view. Third we have is nominal account, debit all expenses, credit all gains. ठीक है, so debit all expenses of the business and credit all gains of the business. Okay, so debit all expenses of the business, credit all gains of the business. So again, think from business point of view. So एक इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में रख लेनी है कि थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फिर आप गलती नहीं करेंगे। दूसरी चीज, हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट दो इफेक्ट तो जरूर होते हैं। सपोज करो मैंने आपको कैश दिया, सपोज मैं बिजनेस हूं और बिजनेस ने किसी को कैश दिया टू थर्ड पार्टी, तो देने वाला कौन है, बिजनेस, लेने वाला कौन है, थर्ड पार्टी। तो एक दे रहा है और एक ले रहा है, सो इट इज अफेक्टिंग टू साइड्स। समझ आ गया? सो एवरी करस्पॉन्डिंग डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। इसलिए बोला जाता है कि दो चीजें एटलीस्ट इफेक्ट होंगी, एक चीज डेबिट होगी, दूसरी क्रेडिट होगी। एक ने दी होगी, एक ने ली होगी, इसलिए बोला जाता है एक ने दी होगी, एक ने ली होगी। सो इट विल बैलेंस द होल इक्वेशन। इस चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंडली, अ ट्रांजैक्शन विल इम्पैक्ट टू अकाउंट्स। ओके, एक दे रहा होगा तो एक ले रहा होगा। Every corresponding debit will have a corresponding credit। ठीक है, एटलीस्ट टू अकाउंट से इफेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं इसमें। So I thought just started on 1st April Ram started a business with cash rupees 5 lakhs। ठीक है, so अब इसके अंदर आप मुझे बताइए how much is the capital of the business? What is the meaning of word capital? Any guess? If you can have, you can just let me know in the comment section also. Capital is the amount invested by the business, sorry, amount invested into the business, right? So that means when Ram is the owner and third is the business. Okay, so the two things, owner and business. Again, a third important point you have to remember is that always there is a separation between the owner and the business. All the personal expenses of the owner will be kept separate from that of the personal expenses of the business. For example, I tell you, Ram went to, Ram who is the owner of the business, he went on a movie। अब ये बिजनेस का पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा कि राम का, राम का, तो हम इसे बिजनेस की बुक्स में नहीं दिखाएंगे। समझ आ गया? सेकंड पॉइंट, बिजनेस ने सैलरीज पे करी। ठीक है, बिजनेस ने सैलरीज पे करी अपने एम्प्लॉयज को। ऑब्वियस बात है, बिजनेस चल रहा है तो एम्प्लॉयज होंगे उसमें, तो एम्प्लॉयज के जो एक्सपेंसेस है वो बिजनेस में काउंट होंगे कि राम की में काउंट होंगे, बिजनेस में। So here personal expense of the business will be salaries. Second important point to understand, for example मैंने इनकम टैक्स पे किया। इनकम टैक्स हमेशा बिजनेस के लिए दिया जाता है, इनकम के लिए दिया जाता है। इनकम बिजनेस कर रही है जनरेट, तो अगेन इनकम टैक्स हमारा क्या होगा, बिजनेस का एक्सपेंस। सपोज मैंने, राम ने अपने बच्चों की कॉलेज की फीस दी। ठीक है, तो ये पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस है कि पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर है, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, तो ये बिजनेस में काउंट नहीं होगा। सो इसलिए हम कहते हैं कि owner is always considered separate from the business. So I hope you've understood the three things you have to keep in mind before making journal entries. पहली बात, हमें always think from the business point of view। हमेशा business के point of view से सोचना है, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑलवेज ओनर इज कंसिडर्ड सेपरेट। ओनर हमेशा सेपरेट माना जाएगा फ्रॉम द बिजनेस। That means all the personal expenses of the owner are considered separate from the business. That means if owner contributes any capital into the business,
it will be considered a liability for the business. It will be considered as that business is borrowing the some capital from the owner. ठीक है. थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि हमेशा एक ट्रांजैक्शन दो साइड्स को इफेक्ट करेगी, दो अकाउंट्स को एटलीस्ट इफेक्ट करेगी. ठीक है, एक ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी. थर्ड पॉइंट ये था कि एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इंपैक्टेड, दो अकाउंट इंपैक्ट होंगे हमेशा. तो हमेशा जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे आपको हमेशा दो अकाउंट के बारे में याद रखना है कि दिस ट्रांजैक्शन विल इंपैक्ट टू अकाउंट्स, दो अकाउंट्स इंपैक्ट होंगे ही होंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहली एंट्री से हमारी. ठीक है, इन तीनों बातों का ध्यान आपको हर ट्रांजैक्शन में रखना है. ठीक है, राम ने बिजनेस को स्टार्ट किया विद कैश ₹5 लाख. अब मुझे बताना है इसमें दो अकाउंट्स कौन से इंपैक्ट हो रहे हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय राम इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. ठीक है, सो कैपिटल. और दूसरी कैश, मतलब बिजनेस को कैश मिला और किसने दिया, राम ने. ठीक है, सो एक चीज इंपॉर्टेंट और है, आपको याद हो हमने पर्सनल अकाउंट का वीडियो बनाया था, इसमें हमने डिस्कस किया था पर्सनल अकाउंट के बारे में कि if owner is contributing capital into the business, we do not write the owner's name into the business, we write capital, we write the word capital. So this capital word is representing the owner of the business. ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. मतलब पर्सनल अकाउंट बोल सकते हैं आप, लेकिन अगर पर्सनल अकाउंट का जो सेग्रीगेशन करते हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है, एक ही बात है, वो पर्सनल अकाउंट ही है. तो अब आपको समझ आ गया दो चीजें क्या इंपैक्ट हो रही है. पहले तो अपनी कॉपी और पेन ले लो और इसमें लिखो दो चीजें क्या इंपैक्ट हो रही है. पहले तो ट्रांजैक्शन का पूरा लाइन लिखो कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. अब लिखो दो अकाउंट कौन से इंपैक्ट हो रहे हैं. एक तो राम ने बिजनेस कैपिटल, जिसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, राइट द वर्ड कैपिटल. सेकंड पॉइंट लिखो कैश. तो एक साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो कैपिटल, राइट हैंड साइड पे लिखो कैश. अब हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. सेकंड पॉइंट हमारा ये था, तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू हमारा क्या था कि बिजनेस हमारा क्या था कि बिजनेस ने ₹5 लाख जो कैश है वो ₹5 लाख जो हमारा कैश है वो लिया है, राइट. जो ₹5 लाख का हमारा कैश था, ठीक है, वो राम ने जो था, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश ₹5 लाख. ठीक है ना, तो दो चीजें हमारी कैश होगी. अब आप मुझे बताना कैश अकाउंट दोनों आपने लिख लिया अच्छे से. अब मुझे बताओ कैपिटल कौन सा अकाउंट है. कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसके नीचे एरो बना के लिखो पर्सनल अकाउंट. ठीक है, क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटिंग द कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर. ठीक है, सेकेंड हमारा कैश क्या है, एसेट. एसेट हमारा क्या होता है, रियल अकाउंट. तो राइट डाउन एन एरो साइड, एक एरो बनाओ और उसमें लिखो इसको रियल अकाउंट है. ठीक है, अब दोनों के एरोस बन गए, एक साइड कैपिटल दूसरी साइड कैश. कैपिटल के नीचे आप लिखो पर्सनल अकाउंट, कैश के नीचे आप लिखो रियल अकाउंट. आई एम टेलिंग यू द वेरी प्रैक्टिकल वे. एक बार इसे करके देखोगे आपको बहुत इजी होगा करना एंट्रीज. ठीक है, एक बार आपको आदत हो जाएगी तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, डोंट बी लेजी इन राइटिंग. ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, अब क्या रियल अकाउंट का फॉर्मूला मुझे बताओ. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. ठीक है, पहले वीडियोस में आप चेक कर लेना एक बार. ओके, अब इसका फॉर्मूला बताओ. डेबिट व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. अब बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, बताओ मुझे. कैश आ रहा है, तो फॉर्मूला के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया इधर, DR, मतलब डेबिट. ठीक है, अब मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब आप मुझे बोलोगे मैम डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर में हम क्या चीज चूज करें. तो मैंने आपको क्या बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन हैज अ कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट. अगर बिजनेस को कैश मिल रहा है तो दे कौन रहा है, राम. ठीक है, तो बैलेंस अपना ऑटोमेटिकली हो गया ना, आपका वेइंग मशीन की तरह बैलेंस हो गया ना. राम दे रहा है और बिजनेस ले रहा है. ठीक है, राम दे रहा है और बिजनेस ले रहा है. तो राम ने दिया और बिजनेस ने लिया, तो बिजनेस का जो बिजनेस ने लिया कैश में तो आपने दिखा दिया 5 लाख. ठीक है, अब राम जो दे रहा है, राम इज द गिवर, बट यू डू नॉट राइट राम ओवर हियर, यू राइट कैपिटल वर्ड. तो आप क्या लिखोगे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो अब गिवर कौन है आपका,
राम मतलब कैपिटल अकाउंट, तो आप कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, सीआर मतलब क्रेडिट। समझ आ गया? आई थिंक इजी, समझ आया? तो इस तरीके से आपको पहले एनालाइज करना है, फिर आपको ट्रांजेक्शन करनी है, ठीक है? अगर आपको याद करना है, जैसे अगर आपको ऐसे करना है कि एसेट बढ़ता है तो या कम होता है, लायबिलिटी बढ़ती है कम होती है, ऐसे करना है, तो मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं बहुत सारी, वो अलग चीजें हैं। जो मेरा अप्रोच है वो ये रहता है, ठीक है? समझ आ गया? ये लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर देगा तो आपको ना पूरी अकाउंट समझ में आ जाएगी। आपको लॉजिक समझ में आ गया तो पूरी अकाउंट समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट, अब एक और हमारे पास पॉइंट है, एक और एग्जांपल ऐसा ही लेते हैं। विनोद ने बिजनेस स्टार्ट किया। कई बार कुछ लोग क्या खाली कैश नहीं लगाते, वो कुछ एसेट भी लगा लेते हैं, जैसे कि कैश भी लगा दिया, फर्नीचर भी 2 लाख का खरीद लिया, बिल्डिंग भी खरीद ली 10 लाख की। तो ये सब हमारी कैपिटल ही मानी जाती है। कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी एंड कैश और द एसेट्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। तो ओनर खाली ये जरूरी नहीं कि कैश ही बिजनेस में अप्लाई करे या लगाए, वो कुछ भी लगा सकता है, सारे एसेट्स भी लगा सकता है, कैश भी लगा सकता है, वो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एसेट। ये सब हमारे क्या एसेट्स, मतलब ये सारे हमारे क्या हो गए, ये सारे हमारे क्या हो गए, एसेट्स। और एसेट हमारे किस अकाउंट में फॉल करते हैं, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। सो इसलिए कैश भी बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर भी बिजनेस में आ रहा है, बिल्डिंग भी बिजनेस में आ रही है, तो ये सब हमारे क्या हो गए, डेबिट साइड में आ गए, ठीक है? समझ आ गया? अब एक जना ले रहा है, एक दे रहा है, मतलब विनोद इज स्टार्टिंग द बिजनेस एंड आई टोल्ड यू विनोद विल बी कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस बिकॉज ओनर इज ऑलवेज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है? सो दैट इज व्हाई एक जना ले रहा है, एक जना दे रहा है, ठीक है? तो बिजनेस ने ले लिया सब कुछ और दिया किसने, विनोद ने। सो यू डू नॉट राइट विनोद, यू राइट capital word because capital word is representing the owner, so it is the personal account, representative personal account, right? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है हमारा, विनोद। विनोद तो हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है? सो हमारा क्या हो गया, ये 10 lakhs 2 lakhs एंड 10 lakhs अगेन इट बिकम्स अ 13 lakhs। समझ में आ गया? नेक्स्ट, ओके ना, थर्ड ट्रांजेक्शन इज कैश परचेजेस वर्थ रुपीज 20,000। अब मुझे एक बात बताओ, कैश परचेजेस में दो चीजें क्या हो रही है, हमेशा हर क्वेश्चन का एक ही फॉर्मूला है, व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स, एक जगह लिख लो कॉपी में। पर मतलब कैश परचेज मतलब बिजनेस ने परचेज करी, जब हम कुछ भी मेंशन नहीं कैश परचेज करेगा, इसका मतलब किसने परचेज की, ऑब्वियसली बिजनेस ने ही करी होगी। मतलब बिजनेस ने कुछ चीजें परचेज करी और उसके बदले में कैश दिया, ठीक है? बिजनेस हैज परचेज सम गुड्स एंड पेड द कैश इन रिटर्न। सो 20,000 जो है, 20,000, ठीक है, ठीक है? सो टू एक्सपेक्ट्स आर कैश एंड परचेजेस, ठीक है? तो कैश हमारा क्या है, दिस इज रियल अकाउंट, ठीक है, बिकॉज हमारा एसेट है। और परचेजेस क्या है हमारा, अगेन परचेज ऑल्सो परचेज, परचेज किस चीज की, गुड्स की होती है हमेशा, राइट? तो अगेन इट इज अ, इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ रियल अकाउंट ओनली बिकॉज ये आपकी एसेट है, गुड्स है, ठीक है? आपने गुड्स परचेज करे तो कैश और गुड्स, ठीक है, परचेज ही बोला जाता है उसको, ठीक है? परचेज ऑफ गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखते, परचेज लिखते हैं क्योंकि हमने गुड्स परचेज करी, ठीक है? तो परचेज इज अगेन योर रियल अकाउंट, योर एसेट अकाउंट। मतलब ये आपका गुड्स माने जाते हैं, इसको हम गुड्स की फॉर्मेशन में बोलते हैं। दो एसेट मेरी क्या है, कैश है, एक गुड्स है, ठीक है? तो इसे गुड्स लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, गुड्स। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग द ट्रांजैक्शन, ठीक है? तो गुड्स लिखते हैं हम लोग। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक तो हम लिखेंगे गुड्स और एक हम लिखेंगे कैश, ठीक है?
हमारा कैश भी रियल है अकाउंट है और गुड्स भी रियल अकाउंट है, दोनों रियल अकाउंट है। सो ये भी हमारा रियल अकाउंट हो गया और ये भी हमारा रियल अकाउंट हो गया। तो फॉर्मूला लगाओ, एक चीज आई एक चीज गई है। क्या चीज आई है बिजनेस में? गुड्स आए और कैश बिजनेस से बाहर गया है। सो डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सो डेबिट क्या हुआ है? गुड्स मेरे बिजनेस में आ गए, तो गुड्स मतलब परचेजेस, ठीक है, परचेजेस मेरे बिजनेस में आ गए और कैश मेरे बिजनेस से बाहर गया है। समझ आ गया? परचेज ऑफ गुड्स मतलब गुड्स मेरे बिजनेस में आ गए और बिजनेस से बाहर क्या गया? कैश। तो एक हाथ से बिजनेस ने लिया और दूसरे हाथ से दिया। अगेन इट इज इम्पैक्टिंग टू अकाउंट्स। यहां पर बिजनेस ने दिया और किसी से लिया और फिर उसको दिया। समझ आ गया? बिजनेस ने क्या लिया? गुड्स ले लिया और फिर कैश दिया। सो इट इज बैलेंसिंग एवरी करेस्पॉन्डिंग डेबिट एज अ करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। समझ आ गया? नेक्स्ट, एक बैंक अकाउंट मैंने खुलवाया और मैंने उसमें 50,000 रुपए डाले। आई ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 50,000। अब देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैंक मेरा क्या, आपको याद है हमने दो चीजें क्या हुई? एक बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, मतलब एक बैंक है और एक कैश है, दो ट्रांजेक्शन इसमें क्या है? एक बैंक और एक कैश, यही चीजें हुई है दो, ठीक है। तो बैंक अकाउंट अगर खुलवाया गया है, एक बैंक का एक कैश का, ठीक है, एक बैंक के एक कैश है, ठीक है। तो बैंक हमारा क्या है? रिमेंबर पर्सनल अकाउंट। रिमेंबर मैंने आपको पर्सनल अकाउंट पढ़ाया था, जब मैंने क्या समझाया था वो पीपीटी में, उसमें दूसरे पिछले वाले वीडियोस में पहले, कि ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन होता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, बिकॉज दे हैव अ कॉमन सील एंड अ कॉमन सिग्नेचर, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इससे क्या माना जाएगा? पर्सनल अकाउंट। ये किस में फॉल करेगा? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम इसमें? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिमिलरली आप इधर आ जाइए, कैश हमारा क्या है? एसेट, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब दोनों में अलग अलग फॉर्मूलाज लगेंगे, ठीक है। तो अगेन टू इट इज बैलेंसिंग द टू इफेक्ट्स, टू अकाउंट्स। एक हाथ से गया, एक हाथ से लिया, मतलब बैंक में पैसा गया, ठीक है, बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया और यहाँ बिजनेस के हाथ से पैसा गया। So business has given the cash into the bank and bank has received the cash from the business. समझ आ गया? अब एक हाथ से कुछ हुआ, एक हाथ से कुछ मिला है। तो every corresponding debit has a corresponding credit. Think always from the business point of view. And third thing, owner is always considered separate from the business. ठीक है? ये तीनों चीजें तो हमेशा याद रखनी whenever you make the entries. ठीक है? ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये आपको खुद समझनी है। तो कैश डिपॉजिट हुआ मतलब बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट था। मुझे बताओ बैंक रिसीवर है कि गिवर है? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मुझे बताओ बैंक रिसीवर है कि गिवर है? बैंक रिसीवर है, बिकॉज बैंक के अंदर पैसा गया है। सो डेबिट द रिसीवर, हमने बैंक के 50,000 रुपए डेबिट करे। और कैश बिजनेस की, कैश हमारा क्या था? रियल अकाउंट, मतलब एसेट अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस के बाहर कैश गया है कि गया है कि मिला है? गया है। सो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तभी तो बैंक में गया वो। बिजनेस के पास से कैश इतना चला गया, दैट मीन्स कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो हमारी एंट्री क्या बन गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आ रहा है? नाउ लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। गुड्स हमने परचेज करे, लेकिन हमने पेमेंट किससे करी? चेक से। मतलब चेक का मतलब, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ चीजें हैं चेक, इसका मतलब आप मान लो बैंक इन्वॉल्व होगा, तो बैंक लिखेंगे बी, ठीक है। और गुड्स पर ब्रॉड किए मतलब परचेजेस हुई है, तो दो चीजें हमारी क्या इफेक्ट हो रही है? परचेजेस और बैंक। अब आप आ जाओ, परचेजेस क्या है? हमारा परचेज का रियल अकाउंट होता है, क्योंकि हमने गुड्स खरीदे, गुड्स है हमारा वो। तो रियल अकाउंट मतलब एसेट अकाउंट, तो एसेट लिख लो। एसेट हमारा क्या है? रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट हमारा क्या है? रियल अकाउंट हमारा क्या है? Debit what comes in, credit what goes out of the business. Everything you have to write down in the book, in the paper. सभी आपको एंट्रीज अच्छे समझ में आएंगी, ठीक है। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सो परचेजेस डेबिट हुई, क्रेडिट हुई है? भाई बिजनेस के अंदर आई है। सो डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, सो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, मतलब गुड्स आए हैं। परचेजेस को हम क्या लिखते हैं? गुड्स। सो डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। देन बैंक, बैंक हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन, ओके। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मुझे एक बात बताओ, बैंक यहाँ पर रिसीवर है कि गिवर है? बैंक से पेमेंट गई है कि बैंक की पेमेंट आई है?
गई है, बिकॉज चेक के थ्रू हमने किसी को पेमेंट करी है, तो मतलब बैंक में से पैसे तो गए हैं, तो बैंक इज द गिवर ओवर हियर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सो गिवर को आपने क्रेडिट कर दिया, सीआर, समझ आ गया, सीआर। सो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, समझ आ गया। सो बैंक से पैसे गए हैं बिकॉज चेक हमने दिया है, तो चेक हमने पेमेंट जब चेक से करी, इसका मतलब बैंक में से पैसे कम होंगे कि बढ़ेंगे, कम होंगे। So it will, bank will initiate, will tell you about the amount of money withdrawn. That means it is a payment made. When payment is made by the bank, payment is made by the check, it means the bank balance will reduce. So here bank is the giver of money. So debit the receiver, credit the giver. So who is the giver over here? Bank. तो हमेशा आपको क्या करना है, पहले ये आइडेंटिफाई करो दो चीजें कौन सी हैं, फिर उन दो चीजों के बारे में ही पता करो, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। फिर जब ये पता चल जाए, फिर आइडेंटिफाई करो क्या क्या रूल्स हैं इनके अलग अलग, फिर जो रूल उस सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं वो रूल आप लिख दीजिए, उसको अप्लाई करके एंट्री बना दीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आई होप यू एंजॉय। सो अनदर थिंग, गुड्स जो हमारे 4000 थे, दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब जो 4000 के गुड्स थे हमारे, वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज फ्री सैंपल्स। अगेन मतलब जो हमारे पास गुड्स थे, मतलब जो हमारी परचेजेस थी, या गुड्स का मतलब अगेन परचेजेस हो गया, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इसके बारे में, ठीक है। गुड्स हमारा क्या है, परचेजेस, जो हम बिजनेस से परचेज करते हैं तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी, ठीक है। तो बिजनेस के जो गुड्स थे उसको हम परचेजेस लिखेंगे। उसने फ्री सैंपल्स की तरह क्यों बांटे, बिकॉज आपने कुछ सुना होगा मार्केटिंग में या किसी सब्जेक्ट में, या वैसे भी आपको पता होगा कि किसी को अगर प्रमोशन करना होता है, एडवर्टीजमेंट करना होता है, तो फ्री सैंपल्स देते हैं वो लोग, ठीक है। जिससे कि क्या होता है, पीपल कम टू नो अबाउट देयर ब्रांड, तो इसको क्या कहते हैं, एडवर्टीजमेंट करना बोलते हैं। इसलिए हम इस वर्ड को क्या यूज करेंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ हम वर्ड क्या यूज करेंगे गुड्स के लिए, परचेजेस। तो परचेज मेरा क्या है, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। रियल अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स की बात कर रहे हैं, गुड्स है मेरे रियल, गुड्स आर ऑलवेज रियल अकाउंट, एसेट है वो मेरा, राइट। तो अब यहाँ पर गुड्स आ रहे हैं कि जा रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हियर गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ माय बिजनेस, यहाँ मेरी परचेजेस बाहर जा रही है बिजनेस के, मैं किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ फ्री सैंपल। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, क्रेडिट वाला। बिजनेस ने दिया और किसने लिया, कस्टमर्स ने, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स ने लिया। अब यहाँ पर मेरा क्या, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस किसकी रेंज में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। सो नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स। तो ये मेरा एक्सपेंस है कि गेन है, तो मेरा एक्सपेंस है, अभी खर्चा कर रही हूँ मैं एडवर्टीजमेंट का, तो मेरा डेबिट हो जाएगा ये 4000 एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और परचेज अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, मेरी एंट्री क्या बन गई, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, समझ आ गया। लास्ट वाली आप ट्राई करना। गुड्स मेरे बिजनेस में जो थे, मेरे गोडाउन में 25,000 के थे, किसी एम्प्लॉय ने चुरा लिए, मतलब थेफ्ट हुआ। तो दो चीजें क्या है, एक तो परचेजेस और दूसरा लॉस बाय थेफ्ट, मतलब मुझे चोरी का नुकसान हो गया, और एक मेरी परचेजेस। दो चीजें क्या है, लॉस बाय थेफ्ट और परचेजेस। परचेज क्या है मेरा, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। रियल, लॉस बाय थेफ्ट मेरा एक्सपेंस, मतलब ये मेरा नॉमिनल हो गया। अगेन अप्लाई द फॉर्मूला। So debit what comes in, credit what goes out of the business. Here purchases are going out of the business because here I got this purchases, these goods were lost. So purchase going out of the business, goods lost हो गए, बिजनेस के बाहर चले गए, बिजनेस में कुछ आ तो नहीं रहा है, जा ही रहा है, नुकसान ही हो रहा है, चाहे बाहर जा रहा है, सो क्रेडिटेड, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सीआर, क्रेडिट। ये क्रेडिट हो गया हमारा। और जो हमारा लॉस बाय थेफ्ट है, ये हमारा क्या, नॉमिनल एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट्स में क्या लिखते हो आप, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। तो ये मेरा गेन तो नहीं है, ये मेरा एक्सपेंस है, तो मैं इसको डेबिट कर दूं, समझ आ गया। तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, समझ आ गया। So thanks for watching and do share, like and subscribe the video. Thank you everyone. Thank you so much.